भारत के लिए एक सैटेलाइट बिल्ड किया जिसका नाम है प्रथम। तो बच्चों, ये प्रथम सैटेलाइट के बारे में आपको आज जानकारी मिलेगी, और वो प्रथम सैटेलाइट किस तरह से आपके लाइफ में वो इग्नाइट कर सकता है एक आपकी खुद की सैटेलाइट बनाने के लिए। और उस सैटेलाइट का लॉन्च 2016 में श्रीहरिकोटा से PSLV-C35 रॉकेट से लॉन्च किया गया। भारत के 3 लॉन्च व्हीकल से, सबसे पहले भारत के पास SLV थी, उसके बाद आया PSLV, और उसके बाद अभी आ गया है GSLV। तो PSLV-C35, दुनिया सोचती थी कि मंगलयान भारत कैसे भेजेगा ऊपर, लेकिन भारत ने PSLV जैसे उतने नहीं, PSLV उतनी पावरफुल रॉकेट नहीं है, फिर भी मंगलयान पर हम पहुंच गए। ये भारत के वैज्ञानिकों का कमाल है। तो आज आपके साथ एक वैज्ञानिक भी है, आप उनसे बातें करने वाले हो 1 घंटे, तो मुझे लगता है सभी का जोश आई है और आप सभी बहुत एक्साइटेड हो। सो वेलकम एवरीवन इन उत्तर प्रदेश। Okay, Rajneesh, you can start the lesson. Thank you very much, Ravi ji. Yes, we'll start with this. So just requested सभी को आप अपनी अपनी जगह पे या तो खड़े हो जाइए. We'll just start. Yes. So yeah, everybody can stand in their place, क्योंकि हम लोग अभी नेशनल एंथम चालू करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यस बच्चों, तो आप अपनी जगह पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। और यस रत्नेश जी, ओके। अब अनुष्का वर्मा फ्रॉम उत्तर प्रदेश, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उत्तर प्रदेश से। अनुष्का जी, आप अपना वेलकम स्पीच दीजिए। अनुष्का वर्मा, अनुष्का वर्मा, कैन यू हियर मी? Good morning everyone. Am I audible to you? यस यस, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। यस, ओके ओके। यस अनुष्का, हेलो अनुष्का। Yes sir. अनुष्का, यस प्लीज स्टार्ट द स्पीच नो विदाउट एनी डिले। यस। So now can I start? Yes, go ahead. Yes, start. You can. Okay. A dream without written down with a date becomes a goal. A goal breaks down steps up over here. Today, I am Anushka Verma, Program Coordinator of Igniting Young Minds. Heartily and warmly welcome our Honorable Chief Guest, Mr. Vikas Sahu and Chitra Sahu, along with Technology Workshop. Today, we all have gathered here to discuss our future plans in the fields of space and technology. Basically, Igniting Young Minds is the biggest digital learning which is specially concerned with the space and satellite. I can ensure each of you that you won't regret being a part of this platform. Definitely going to help you to go more as a Igniting Young Minds always promotes each and every student in the fields of space and technology to make our nation self-reliant. But before that, the question arises, why do we need our own satellite? And the reason is not have to pay crores of rupees to the other countries for purchasing the same thing. It
we all can make, that is satellite. When we make our own satellite, then we can utilize that money in our country in the different fields like best healthcare medical facilities, technologies in our defense system as well. And when we complete our different missions with our own satellite, then we can say proudly as well as loudly, now Okay. Yes. Okay, Anushka, all good, of good. you for joining us and helping grow. Okay. Thank you and have a nice day. Okay, okay. Yeah. Ashish Tyagi, can you hear me? Ashish Tyagi? Hello, Ashish. Hello. Hello. Yes. Can you just give your... Yes. हेलो हाँ आशीष, हाँ जी, बोलो आशीष बोलो, त्यागी सुन पा बात रहा कर रहा हूँ जी जी हाँ, बोलो बोलो। आशीष। जी। गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो। हाँ बोलो ना आशीष, बोलो। Yes, we जी। can hear you, Ashish. हेलो। Okay, leave it, Ratnesh ji. We will connect him later on. Okay, Ratnesh ji, आप continue Yeah. कीजिए. So Ashish will connect in some time. Yeah. Okay. Yes. Yeah. So ठीक है, चलिए. so रत्नेश जी yes, पहले we'll क्या start. कीजिए, I'll share. PSLV C37 का जो वीडियो है ना वो प्ले कीजिए. Sure. I'll PSLV make it. C37. आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है, प्रेम प्रकाश माइक बंद कीजिए. आप सभी से रिक्वेस्ट है, माइक बंद कीजिए. मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ. यस, सो यस, ओके, यस. Mission to ISRO Nanoco passenger satellites, apart from other satellites belonging to international customers, have been successfully launched. So this was a video of जब इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे PSLV जैसे आपने C37 के. जैसे स्क्रीन प्रेजेंट की रत्नेश जी, वो एक बच्ची ने प्रेजेंट जी. कर दिया स्क्रीन, तो स्क्रीन गायब हो गई. Okay. I am requesting all of you, if you want to enjoy the workshop, don't present your screen. Some Now of you you are can. still... Yes. Minus 30 seconds. Real-time Right. program set. PS2 VSPPs are opened. 10, 9, 8, 9, 7, 8, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, plus 1, 2, get 3, set, go. 4, Yes, Ratnesh ji can continue. Usual for PSLV, and you can see Yes. Ratnesh ji, you can close the video and you can continue. Yes. तो यस सभी को नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम इग्नाइटिंग यंग माइंड से जुड़ने के लिए. और मैं रत्नेश मिश्रा. सभी को वेरी गुड मॉर्निंग. मैं एक स्टूडेंट सैटेलाइट टीम का पार्ट था. प्रथम अच्छी चीज है कि मैंने अभी कुछ बच्चे देखे हैं विद द नेम प्रथम हियर इन द जो ज्वाइन किए. तो आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड ये प्रथम एक स्टूडेंट सैटेलाइट है जो कि कंप्लीटली बिल्ड बाय कॉलेज स्टूडेंट्स एंड जो कि लॉन्च हुआ था इसरो के साथ PSLV C35 में जो स्पेस में है. एंड वी जस्ट कंप्लीटेड 4 years नाउ. एंड सो यस, let's have a very good start. And Uttar Pradesh people are anyways so excited about this, so I am so thankful. And also since I am currently part of मैं अभी खुद एक startup चला रहा हूँ energy field में. So for me anyways this day is very lucky day because we actually started on 10th October and it's 2 years now. So thank you very much for everyone joining here. I'll just share a screen and then we will start. So we will discuss about how things about the satellite and space and also about the journey of Pratham here. I'll just share this screen. So रवि जी जब दिखेगा तो बताइएगा. Yes, the screen is
visual now. Okay, you can continue. Yes. So very well. So as you can see, with the Igniting Young Minds, जो एक संस्था या एक NGO है जिसके थ्रू हम हर स्कूल में हर बच्चों को स्पेस और सैटेलाइट के फील्ड की वो अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली वो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं और स्पेस की फील्ड में उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी उससे रिलेटेड जानने के लिए बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी के माध्यम से हमने ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में ऑलरेडी हमने वर्कशॉप्स किए, मणिपुर, इवन मालदीव्स जो आउटसाइड इंडिया है जहाँ पर हमने वर्कशॉप्स किए। तो इसके थ्रू हम बहुत सारे स्टेट्स में कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर सो थैंकफुल इन यूपी। So yes, let's have the start. So this is Pratham from IIT Bombay Student Satellite Team. So आप सभी anyways जानते हैं कि so ये सारे बच्चे जो हैं आप सभी सैटेलाइट के बारे में गूगल कर सकते हैं, बाकी चीज़ें पता कर सकते हैं, बट हमारा यहाँ पर रहना इसलिए हम क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ ऐसी है जो वी कैन हेल्प यू विद दिस। हर सैटेलाइट, वो सैटेलाइट जो कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट लगता है दिखने में, स्पेस में या जो भी चीज़ें, बट वो हर सैटेलाइट का पार्ट और एक्शन आपकी डेली लाइफ, आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट से लिंक किया जा सकता है। इसलिए वो हम आप उस सब को, अच्छा आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी डेली एक्शन है, कोविड के टाइम पे आप जान रहे होंगे हम लोग मास्क पहन रहे हैं। अब मैं कहूँगा कि सैटेलाइट भी मास्क पहनता है, तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे है कि स्पेस में तो कोविड नहीं है एटलीस्ट। तो आई विल टेल यू कि आपने जब भी ये देखा होगा कि जो सैटेलाइट्स होते हैं उनमें गोल्डन कलर की लेयर होती है, लाइक जो सोना नहीं होता है हर बार बट वो स्पेस के लिए, सैटेलाइट के लिए एक मास्क है जो स्पेस के रेडिएशन से उसे बचाता है। इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे आपके हर बच्चे के हाथ पैर कान नाक जो होते हैं सेंसर्स की तरह, सैटेलाइट के लिए भी वो चीज़, हर चीज़ अलग अलग होती है। जैसे आप खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, तो सैटेलाइट रन्स ऑन सनलाइट, लाइक वो जादू वाला चीज़। तो एवरीथिंग कैन बी लिंक्ड टू एनीथिंग अराउंड योर डेली लाइफ। अभी हम जो कर रहे हैं यहाँ पर, जो ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हैं, ये किसके थ्रू पॉसिबल है? सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो हर चीज को उस तरह से लिंक किया जा सकता है और ये इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं कि आप ये पिक्चर तो जानते होंगे स्वदेश का एक सीन। तो स्पेस एक्चुअली आप सभी को वो एक माध्यम देता है कि आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो चाहे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पेस एक ड्राइंग बुक की तरह। आप इसमें अगर आप सिर्फ अंधेरों पे फोकस करेंगे, कि आप सिर्फ अंधेरे पे रिसर्च करेंगे, तो हो सकता है आप नए ब्लैक होल रिसर्च कर लेंगे। आप अगर सिर्फ तारों पे फोकस करेंगे तो हो सकता है नए तारे या ध्रुव तारे से लेके सप्तऋषि सब तारों का आप कॉन्स्टलेशन, शेप, साइज पता कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सूरज पर फोकस करेंगे तो क्या पता आप ऐसे नए सौर्य मंडल खोज सकते हैं। तो इसलिए स्पेस कभी किसी को बाउंड नहीं करता है कि हमें इसी फील्ड में रहना है या इस चीज में। एंड अभी तो नापी है सिर्फ जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है और आसमान से ऊपर अभी तो पूरा स्पेस बाकी है। तो यस, तो ये वो ऐसी फील्ड है जहां पर आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप सभी को पहले इस जर्नी स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी, सो आई कैन सी बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर, बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर। तो सभी से मेरा क्वेश्चन है, आप सभी चाहिए तो अगर यस होगा तो यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन जस्ट मैसेज इन द चैट बॉक्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप सभी ने अपने बचपन में दुनिया घूमने के सपने देखे हैं? लाइक आई विल रोम अराउंड द होल वर्ल्ड। कुछ यस या चैट बॉक्स में। ओके, यस, हाँ, ओके, आई कैन सी लॉट ऑफ यस। सेकेंड क्वेश्चन, क्या आप सभी ने आसमान छूने के सपने देखे हैं? लाइक आई विल टच द स्काई। ओके, यस, आई डोंट फाइंड एनी नो ईयर, बट ठीक है, दैट इज सुपर। ओके, सो आई पर्सनली डोंट नो वेदर आई डिड, मैंने वो दोनों सपने पूरे किए या नहीं किए, बट मैं उस एक टीम का पार्ट था, एक प्रोजेक्ट का पार्ट था, एक सैटेलाइट का पार्ट था जिसने ये दोनों सपने पूरे किए। कैसे? प्रथम इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ
हर 90 मिनट में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो वो पूरी दुनिया घूम रहा है, एंड वो भी स्पीड है उसकी 7 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मतलब अगर मैं अभी यहाँ से आपके यूपी के लिए चलूँ तो शायद आई विल बी देयर इन 2-3 मिनट्स फ्रॉम नासिक। तो इस तरह से वो रिवॉल्व कर रहा है पूरी दुनिया के। एंड सेकंड जो चीज है, उसने सिर्फ नॉट जस्ट टच द स्काई, बट उससे भी ऊपर उसने स्पेस टच किया है। तो इसलिए ये दोनों सपने जो हैं, जो हर हर सिर्फ मेरे नहीं, हर बच्चों से लिंक्ड उनके पेरेंट्स और उन सभी का ये जो सपना है, उसकी ही जर्नी को हम ये कहते हैं कि जर्नी ऑफ ड्रीम्स। तो इसीलिए हम प्रथम को हमेशा सपनों की ये जर्नी कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये वो सैटेलाइट है जस्ट बिफोर द फाइनल फ्लाइट से पहले की ये पिक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे पार्ट्स, गोल्डन लेयर, दिस थिंग, सोलर पैनल एंड तो यस, तो ये जो पिक्चर है, आप एनीवेज आप लोग गेस कर पाएंगे कि किस दिन की होगी या किस टाइम की होगी। तो ऑल द टीम मेंबर्स सो सुपर एक्साइटेड, इमोशनल, एंथुसियास्टिक। ये पिक्चर है सैटेलाइट लॉन्च के दिन की, लाइक जो मैंने कहा 26 सितंबर 2016। ये चीज क्यों स्टार्ट हो पाई? ये चीज स्टार्ट हुई इस तरीके से कि हमारे IIT बॉम्बे में बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स थे। वन पर्सन केम अप विथ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक सीधा और सिंपल सवाल, व्हाई कांट वी बिल्ड द सैटेलाइट? ओके, एंड सिर्फ ये क्यों चीज का जो सवाल है, जो मैं आप लोग के लिए ये क्वेश्चन पुट कर सकता हूँ, व्हाई कांट आपके स्कूल से एक सैटेलाइट इसरो लॉन्च करें विद इन अ ईयर, विद इन 2 years, विद इन 3 years, या जो भी आपका टाइम। तो ये आप लोग के लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग ये सोचिए कि क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं कॉलेज के बच्चे नहीं, क्यों नहीं स्टूडेंट तो किया, अब क्यों नहीं स्कूल के बच्चे कर सकते? सो एक कलाम सेट है जो स्कूल के बच्चों ने लॉन्च किया, तो क्यों नहीं आपका स्कूल ये लॉन्च करता है? तो यस, वो एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर इतना रेवोल्यूशनरी है कि आप समझ सकते हैं, मैं अभी आपके सामने बैठ के वो डिस्कस कर रहा हूँ और वो चीज़ें, उसकी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। तो यस, आई होप कि इस वर्कशॉप के बाद कुछ बच्चे सुपर एक्साइटेड हो इस चीज़ के लिए कि वो खुद का सैटेलाइट बनाए, खुद का चीज़ है। तो यस, जैसा विजन और मिशन होता है हर चीज़ का, तो आई थिंक रवि जी ने आपको बताया होगा कि ये जो सैटेलाइट है प्रथम, ये आयनोस्फीयर जो लेयर होती है उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करता है। उसका एप्लीकेशन इस तरीके से होता है कि जैसे आप GPS सिग्नल जो होते हैं, जो डिस्टर्ब्ड आते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम कितना बेटर, एक्यूरेट और परफेक्ट कर सकते हैं, वो एक एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन है सुनामी प्रोडिक्शन के लिए। तो सुनामी जब आती है तो वहाँ से जो वेव्स जनरेट होती हैं वो ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करती हैं, तो हम उनको कैप्चर कर सकते। तो इस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। ये जो 2 एप्लीकेशन है ये प्रथम के एप्लीकेशन थे। इसके बाद डेफिनेटली विजन जो था वो चीज़ कि हम सिर्फ एक सैटेलाइट तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। हम IIT बॉम्बे को पूरा स्पेस में एक्सपर्टीज, सैटेलाइट में स्पेसिफिक सेंटर ऑफ नॉलेज बनाना चाहते थे। तो वो प्रयास जो है वो ओवरऑल विजन रहा। जैसे हम इग्नाइटिंग यंग माइंड के थ्रू अचीव कर रहे हैं, जो डॉक्टर कलाम के सपनों पर है कि डॉक्टर कलाम जो स्पेस फील्ड के महानायक है खुद, तो वो सैटेलाइट और स्पेस उनसे लिंक्ड है। एंड बाकी 2 चीज जो हमेशा उनके विजन में रहा कि यूथ एंड एजुकेशन, तो इन तीनों चीजों को कंबाइन करके जो इग्नाइटिंग यंग माइंड का विजन, तो इस तरह से चीजें हैं। आप सभी आपस में या एक दूसरे को या कभी किसी कॉम्प्लेक्स चीज के लिए या कोई डिफिकल्ट चीज के लिए कहते होंगे कि ये क्या रॉकेट साइंस है। तो आप जो देख रहे हैं अभी वो है रॉकेट साइंस। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द रॉकेट साइंस, जिसके लिए ये पूरा रॉकेट की चीज, डेवलप, डिजाइन, एवरीथिंग, सिंपली बिकॉज क्योंकि आपका रॉकेट, आपका सैटेलाइट हो सकता है 1 करोड़ का प्रोजेक्ट हो या 2 करोड़ का प्रोजेक्ट हो। ये सैटेलाइट जिस PSLV में जाता है, रॉकेट में जाता है, वो होते हैं 500 करोड़, 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट। आपका कोई भी एक पार्ट अगर जो डिफेक्टिव या किसी रॉकेट को नुकसान पहुंचाए,
तो आप समझ सकते हैं कि आप पे खुद पे कितना प्रेशर, इमेंस प्रेशर एंड गिल्ट रहेगा, जो आप देश का नुकसान कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो इसीलिए यहाँ पर क्वालिटी, प्रिसीजन एंड इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड हम सब जब हमने स्टार्ट किया था तो कोई वी वर नॉट इवन प्रोफेशनल कि हमें कैसे इसरो के सामने प्रेजेंट करना है, बताना है, क्या चीज करनी है क्या नहीं। तो यस, तो आप जब भी कभी इसरो के सेंटर कोई गया होगा अगर, तो आप वहां पर देखेंगे जीरो डिफेक्ट इन स्पेस सिस्टम। वहाँ की हर क्वालिटी पॉलिसी में हर पर्सन के दिमाग में ये चीज क्लियर है, जीरो डिफेक्ट इन स्पेस सिस्टम। तो इसका सिंपल मतलब ही ये है कि स्पेस की फील्ड में अगर हम काम कर रहे हैं तो कोई गलतियां पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकती, करनी ही नहीं। तो यस, इस तरह की क्वालिटी एंड चीजें का पार्ट हम बने। आप सभी जानते हैं कि हर प्रोजेक्ट की तरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके में इन्वॉल्व हुए लोग, उसकी टीम। जैसे आप बच्चे सब स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट करते होंगे या कोई भी प्रोजेक्ट करते होंगे, तो आप किस तरह की टीम है, क्या है, कौन है, किसके साथ आप कर रहे हैं। तो उसी तरह जितने कॉम्प्लेक्स और बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उतनी ज़्यादा ये ज़रूरत होती है। तो हमारे एक प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना था कि प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं होते, लाइक उसके लोग जो होते हैं। तो आप जानते हैं कि डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हर प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट सेम होता है, बट हर बार उसके अचीवमेंट्स, उसकी चीज़ें बदलती। तो वो क्योंकि वो पीपल से चलता है, उसके लोग से चलता है। तो इसी तरह से सैटेलाइट, आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, ये इस पिक्चर में आपको थोड़ा पूरा ये सैटेलाइट के अंदर की पिक्चर है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा एक जाल है उसका। एंड हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए हर बार 2 दिन लगते थे, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसको वापस खोल कर 2 दिन। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्वालिटी चीजें नीडेड है। ये जो जर्नी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये जर्नी 1 दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है, 1 हफ्ते की नहीं है, 1 महीने की भी नहीं है, और नहीं 1 साल की है। ये जर्नी है 8 लॉन्ग ईयर्स, फ्रॉम 2008 टू 2016। एंड वो एक कंटिन्यूस पार्ट इसका। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, दिस इज पिक्चर ऑफ क्लीन रूम जहाँ पर लोग टेस्टिंग कर रहे हैं वो चीजें। तो ये आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा कि जी स्क्रीन फिर से प्रेजेंट कीजिए। जी 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 रत्नेश जी, यस यस, फिर से स्क्रीन प्रेजेंट करें। नेहा त्यागी करके एक बच्ची है, वो स्क्रीन पर। गीता राजभर, मैं आप सभी को मीटिंग अर्निंग के बाद कर दूंगा जी। अभी क्लियर है? करो, ये पूरी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, प्रेजेंट करो। यस, अभी आया जी है। जी जी। कोई भी बच्चा, 1 मिनट रुक जाए रत्नेश जी, कोई भी बच्चा स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि ये पूरी मीटिंग रिकॉर्ड होती है। मैं आप लोग को देख रहा हूँ, बार बार आप लोग स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हो। राइट, बिल्कुल 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 जी। तो आप सभी के साथ एक एग्जांपल ये शेयर करूंगा कि मान लीजिए आपके घर पे कोई टेबल, चेयर या कुछ भी चीज है, आप उसको कैसे लाते हैं? या तो कार में लाएंगे, चेयर है तो बाइक में ले आएंगे, या कैसे भी तरीके से आप ला सकते हैं। अगर उसका कोई पार्ट खराब हुआ तो आप क्या करते हैं? या तो खुद जुगाड़ करते हैं कि भाई एक आध स्क्रू कीला ठोक दिया इधर से और हो गया जुगाड़, या फिर आप किसी मेंटेनेंस पर्सन को बोलते हैं, या फिर आप किसी सर्विस पर्सन को बुलाते हैं। इमेजिन कर सकते हैं आप ये चीज कि ये सैटेलाइट में क्या होता होगा। स्पेस में जाकर अगर सैटेलाइट का कोई भी पार्ट फेल होगा या कोई एक स्क्रू ही निकल गया, चलिए मानिए, तो क्या आप सोच सकते हैं कि मैं इसरो को कॉल करूं एंड कहूं कि हे इसरो हेल्पलाइन सेंटर, प्लीज सेंड एन एस्ट्रोनॉट और मेरे सैटेलाइट को सही करो, या कुछ भी करो, या कोई सर्विस इंजीनियर भेजो? बिल्कुल नहीं। दिस इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल कि कोई भी स्पेस में हुई मिस्टेक आप उसको रेक्टिफाई कर सकें या करेक्ट कर सकें। ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक सो हमारी जो गर्ल प्रोजेक्ट मैनेजर है मानवी धवन, जो इग्नाइटिंग यंग माइंड्स के साथ भी जुड़ी हुई हैं, उनका कहना था कि स्पेस डजंट गिव यू अ सेकेंड चांस। स्पेस आपको कभी भी दोबारा मौका नहीं देता। आपको जो करना है वो एक परफेक्ट चांस में, परफेक्ट चीज में करना है। तो इसलिए जब भी आप कुछ स्पेस में भेज रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक सिर्फ पत्थर भेज रहे हैं, आपको एक वर्किंग सैटेलाइट वहां पर भेजना है। तो ये वो पिक्चर है जिसमें
हर सैटेलाइट की काफ़ी लंबी टेस्टिंग होती है, जिसमें आप स्पेस का जो एनवायरनमेंट है वो आप ग्राउंड पे क्रिएट करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। आप जितना ज़्यादा फेलियर चेक यहाँ पर कर पाएंगे वहाँ नहीं होगा फेल। तो इसीलिए ये चीज़ें हैं कि ये 40 आवर्स की टेस्टिंग होती है, 40 घंटे की कंटिन्यूस टेस्टिंग। और जो हम 7-8 लोग उस टेस्टिंग का पार्ट थे, तो आप उनसे वो एडवेंचर, वो थ्रिल फील कर सकते हैं कि भाई 40 घंटे तक बिना सोए चीज़ें किस तरह से उस प्रेशर पे इसरो साइंटिस्ट जो वहाँ प्रेजेंट है उनका प्रेशर, आपके डेटा एनालिसिस, सब कुछ चीज़ों का किस तरह से हमने वो देखा, उस टेस्टिंग के उतार चढ़ाव चीज़ें। तो यस, सो दिस पिक्चर वो एक एंड ये किस तरह से स्टार्ट हुआ, तो आप ये पिक्चर पे देख सकते हैं सप्तऋषि बंदोपाध्याय, he was the founder of this. And sir, वो sorry अभी to disturb you, sir, but I want to ask a question. yeah, we will discuss questions. You Yes, can Ramesh, message yes, in the yes. chat. We will discuss at the yeah. Oh, There will be question and answer session. Don't need to worry. We will give all the time for all of you. बिल्कुल बिल्कुल। Only request is that don't unmute yourself and don't present the screen. Yeah. So Everyone. anyways, Yes, so happy everyone. that आप लोग को क्वेश्चन आ रहे हैं, you will be excited about this. तो yes, हम उस पर जरूर डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो ये जो है ही इज करेंटली विथ नासा में जेट प्रोपल्शन लैब जो है उसमें ये कार्यरत हैं। डिफरेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये पूरी 8 साल की जर्नी, एंड आई एम द लकीएस्ट वन टू बी, आप राइट मोस्ट में देख सकते हैं, आई एम द लकीएस्ट वन टू हैव दिस यंगेस्ट ऑफ देम। एंड मेरा जो ओवरऑल सैटेलाइट लॉन्च था वो इन माई टेन्योर इट वाज। So yes, so proud moment for that. Yes, so this was our first step towards infinity, and now on the second step towards the education side we are working. I'll just share a small video of yes. I'll just share a video of a satellite launch जो PSLV C-37. रवि जी, स्क्रीन विजिबल है? नहीं अभी नहीं विजुअल है। Yes, so you can children, you are going to watch the video of PSLV C-35. This was the rocket used to launch the Pratham. So you can see that on the screen. This video of PSLV C-35. It's a 4-stage rocket. It's a 4-stage rocket from India. The main which has got 2 liquid propulsion and solid total electron count. You can see that left side, this is a Pratham set. आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा प्रथम सैटेलाइट है वहाँ पर, और उसकी आप लॉन्चिंग देखने जा रहे हो, लॉन्च किया गया। राइट, आप देख सकते हैं किस तरह का फील होगा। जो हम टीवी में देखा करते थे वो हमारे साथ लाइव लॉन्च था, एंड वो टॉप पे हमारा सैटेलाइट रखा हो, तो आप अज्यूम कर सकते हैं किस तरह का फील हो। प्रक्षेपण ज्वलन बिल्कुल सामान्य, आकाश की ओर उठता हुआ PSLV और जोरदार। We will hear the confirmation of the separation of the Pratham satellite built by students of IIT Mumbai, and also followed just 10 seconds later the separation of PISat satellite built by the students of PES University Bangalore. तो ये वो पर्सन जो अनाउंस करते हैं कई उपग्रह इसरो भारतीय विश्वविद्यालय के लिए छोड़ चुका है। जी हाँ, प्रथम उपग्रह भी अलग, प्रथम इज सेपरेटेड। ओके, यस, देख सकते हो बच्चों किस तरह से प्रथम उपग्रह, और वहां पर जो बैठे हुए थे, आपने ध्यान से देखा होगा, वहां पर K-Sivan सर बैठे हुए थे, इसरो के डायरेक्टर जो वहां पर बैठे हुए थे। ठीक है, यस रत्नेश जी कंटिन्यू। तो यस, कैसा फील कर रहे हैं आप सभी लोग, लाइक ये वीडियो देख के? आर यू एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड और नॉट? तो मैं खुद जब ये हर बार देखता हूँ तो मुझे खुद लगता है कि आप इमेजिन कर सकते हैं जब वो लॉन्च हो रहा होगा, एंड उस लॉन्च पे आप वहाँ टॉप पर वो सैटेलाइट आपका बनाया हुआ रखा है। तो मैं वो लकी पर्सन था कि मैंने वो सैटेलाइट उठा के वहाँ रखा था, एंड फिर उन्होंने बाकी सारी चीज़ें जो प्रोसेस थी,
तो ये वो जर्नी के जो हम बात कर रहे हैं कि वो एक दिन का पार्ट है, और उसके लिए जो आप कर रहे हैं वो एक दिन ये देखने के लिए कि हाँ वो वहां तक हम कर पाएंगे या देख पाएंगे या अचीव कर पाएंगे। तो वो जो जर्नी है, आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन। या रवि जी अगर किसी और को होगा तो बताइएगा मुझे आप बीच में, तब तक मैं स्क्रीन शेयर। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अभी आप इग्नाइटिंग रामायण से जुड़ सकते हैं। अभी आपको मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप शेयर किया था, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो गए तो आप इग्नाइटिंग रामायण से जुड़ सकते हो। अभी देख सकते हो कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा भारत के सबसे शक्तिशाली इंसान का ट्वीट जो किया गया था प्रथम के लिए। अभी रत्नेश जी आपको विस्तार में आप सभी को लॉन्च के बाद कैसा फील कर लो, हाउ इज द जोश? यस रत्नेश जी, यस हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री है। तो विकास सर, कैन यू हियर मी? हेलो विकास सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो विकास सर, I think he has joined just now, but I think जी yes, I can see his video now. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा विकास जी। yes. हाँ उनको अनम्यूट कर, रत्नेश जी बोलिए ना। विकास जी है, विकास जी। हाँ विकास सर, ऑडियो अनम्यूट कीजिए। yes, now you can. Good morning everyone. Unmute you also. आप सुन सकते हैं मुझे? यस सर, यस सर। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ग्रेट, थैंक यू। यस, सो विकास जी आप बताइए, आप योर थॉट्स ऑन दिस, आत्मनिर्भर भारत की चीजें एंड किस तरह से हम उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल, आप, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक 12 मई 2020 हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत मिशन को इम्प्लीमेंट किया था। इस मिशन के अंतर्गत, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी किसी भी क्षेत्र में काम को आसान बनाने का काम करती है, और मोदी जी के विजन और सोच के बारे में पूरा देश जानता है कि उनका सोच हमारे देश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का काम कर रही है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने एक योजना लागू की थी, जनधन योजना, जिसके अंतर्गत बहुत लोगों का अकाउंट खुलवाया गया था, बैंक अकाउंट खुलवाया गया था। और इस कोरोना काल के समय, जिस समय किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना कठिन था, उस महामारी के दौर में भी इतने लोगों के सीधे अकाउंट में 500 और 1000 रुपए की किस्त पहुंचाई गई। तो आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को कितना आसान बना सकती है। और माननीय मोदी जी का यह सोच के कारण हमारे देश की जनता जो महामारी के इस दौर में जो पैसे से या खाद्यान्न सामग्री की जो जरूरतें थी, उनको मोदी जी ने बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के उन तक पहुंचाने का काम किया है। और इग्नाइटिंग यंग माइंड्स के द्वारा जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का ये वर्कशॉप जो रखा गया है, इस वर्कशॉप पे का मुख्य उद्देश्य मोदी जी के
विजन को आगे ले जाने का है। और मोदी जी का ये भी कहना है कि लोकल फॉर वोकल। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने देश के, हम इस आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि हम अपने आप को मजबूत करें, सुदृढ़ करें। जो ग्लोबलाइजेशन का इस दौर में हम किसी दूसरे को सामान को बंद नहीं कर देंगे, बट अपने सामान को इतना बेहतर बनाएंगे कि लोग हमारे सामान को ही कंपैरेटिवली दूसरे देशों के सामान की तुलना में हमारे सामान को ही खरीदें, अपने आप को इतना बेहतर बनाएं। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। इग्नाइटिंग यंग माइंड्स के द्वारा जो ये वर्कशॉप रखा गया है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे, उसके लिए बहुत बहुत इग्नाइटिंग यंग माइंड्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस वर्कशॉप में मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी श्रोता या अतिथिगण मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, Vikas. Thank you so much, sir, for your time. Yes. रत्नेश जी आप कंटिन्यू कीजिए, मतलब बता दीजिए विकास जी। यस विकास जी, बहुत आपने जिस तरह से एकदम सही चीज कहा कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो हर चीज मुमकिन है, और वो चीज जो एक्चुअली बच्चे कर पाएंगे आगे चलकर, तो वो एक माध्यम है जो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम उन लोगों तक अचीव कर पाएंगे। तो यस, वो एक कोशिश का पार्ट है ये। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस। थैंक यू सो मच। एंड यस, सो रत्नेश जी, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैम की तबीयत खराब थी। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली मैम की तबीयत खराब थी, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाई। जी। इसीलिए मैम ने मुझे फोन किया था सुबह में, तो सर उनके भी हाथ में ज्वाइन किए थे। जी। सॉरी, मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि मेरी पत्नी का तबीयत खराब होने की वजह से वह वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाई, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। Thank you, sir. Thank you so much for your time. Yes, now Ratnesh, you can continue. Yes. Thank you, Ravi ji, for the opportunity. Thank you very much. Yes. And I hope and the good wishes. Thank you, sir. All the children who are listening. Okay. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. So, yes. Ratnesh, Yes, continue, I'll please. share. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर? Yes, I can see your screen. या तो Yes. जैसा कि आप सभी को लॉन्च के बाद की कुछ अच्छी चीजें एंड तो ये जो जर्नी है ये एक मूवी की तरह है। इसका हर पार्ट आपने देखा कि एक्शन, एडवेंचर, थ्रिल, आपको मैं क्लाइमेक्स भी बताऊंगा जरूर। तो ये पहले आप देख सकते हैं कि ये सारी अच्छी चीजें जो आफ्टर द लॉन्च कि किस तरह का आपको रिकॉग्निशन ऑल ओवर वर्ल्ड डिफरेंट प्लेसेस से हर तरफ से मिला। एंड आप पिक्चर में भी देख सकते हैं महाराष्ट्र गवर्नर ने हमें पूरी टीम को इनवाइट किया था फेलिसिटेट करने के लिए। तो वो टाइम एंड एक चीज आपके साथ कि ये चीज अचीव करने के लिए भी जो लास्ट के क्लाइमेक्स पार्ट है मूवी का, वो आई विल जस्ट शेयर हियर कि जैसा मैंने पहले कहा आपको, ये 26 सितंबर को लॉन्च किया गया था। 26 सितंबर मॉर्निंग का टाइम 9 से 10 के बीच में ये लॉन्च हुआ। एंड उसके 1 घंटे बाद सैटेलाइट रॉकेट से अलग हुआ। जो आपने वीडियो में देखा कि उसने कहा था प्रथम सेपरेटेड का मतलब वो जो रॉकेट PSLV से प्रथम वो सेपरेट हो गया। एंड नाउ वो अब अपने खुद के दम पर जो पूरा ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वो चीज। हर सैटेलाइट अर्थ से कम्युनिकेट करता है, तो डेफिनेटली वो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में तो कम्युनिकेट नहीं करता है। उसके लिए होता है मॉर्स कोड, डॉट डैश के फॉर्म में जो वो कोड सिग्नल भेजता है, वो यहाँ पर अर्थ पर डिफरेंट ग्राउंड स्टेशन होते हैं जो अचीव करते हैं वो सिग्नल। तो हमारा जो प्रथम सैटेलाइट था एक्चुअली हर दिन में 2 या 3 बार सिग्नल अर्थ पर भेजता है। तो उस दिन सवेरे लॉन्च था एंड शाम को हमें वो सिग्नल रिसीव करने का टाइम था 8 बजे का। We were all super excited and we were at the
टॉप मोस्ट ऑफ आवर इमोशंस एंड एक्साइटमेंट जब वो लॉन्च हुआ। तो आप वो पिक्चर से भी देख सकते हैं जो आपने देखा फर्स्ट पिक्चर। उसके बाद जब हम वी वेटेड फॉर द सिग्नल टू अचीव एंड सिग्नल नहीं आया। ओके, तो उस दिन हमने सिग्नल नहीं आया, आप समझ सकते हैं कि वो डाउन ऑफ फील कि क्या हो गया सैटेलाइट को, क्यों सिग्नल नहीं आया, क्या, और ये सारी चीजें इन बिटवीन द मीडिया प्रेशर एंड सिग्नल क्यों नहीं आया, क्या हुआ, ये तरह की चीजें। एंड वी वेयर की ऐसा क्या है, मतलब हमने क्या बना दिया, क्या चीजें होगी, क्या फेल हुआ। हमने अगले दिन ट्राई किया रिसीव करने का, नहीं हुआ। अगले दिन जो एक अच्छी खबर जिससे अगर नॉर्मल इंसान हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी भी खुश हो जाएगा बहुत ज्यादा, बट हम नहीं थे, वो ये थी कि हमें गवर्नर से इनवाइट आया था फॉर पूरी टीम को फेलिसिटेट करने के। तो बट वी वेयर विद द मिक्स्ड फीलिंग कि हाँ मतलब है तो हम एक्साइटेड जाने के लिए, बट हमारे पास सिग्नल नहीं आया हमारा सैटेलाइट। तो वो दिन हमने ट्रैक किया बट नहीं आया सिग्नल। हमने अगले दिन जब हम, तो ये पिक्चर का रेफरेंस ये है कि हम वी वेयर, so this is a bus from IIT Bombay. It is called Tum Tum. So ये गवर्नर की प्लेस, तो ये गवर्नर की प्लेस पे जब हम जा रहे थे तो हमें यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन से हमें मैसेज आया कि ये जो सिग्नल है, एक सेकेंड, या तो हमें वो आया कि, या आप लोग म्यूट कर सकते हैं आपसे भी अपना, ताकि बीच में विल कंप्लीट एंड देन विल डिस्कस। तो हमें यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन से ये सिग्नल आया कि हमें आपके सैटेलाइट का कुछ डेटा मिला है, बट हमें नहीं पता वो आपका ही है या किसका है, क्या है, आप डिकोड कर लीजिए। तो इस तरह से हमें एक्साइटमेंट अभी और मिक्स्ड हो गई, फील डबल कि हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम गवर्नर के प्लेस में गए, सारी चीज़ों के बाद हम जब वापस आ रहे तो हमें वो एक ऑडियो फाइल होती है, तो उसको हमें भेजा गया। एंड फिर वो उसके हर बिट ऑफ डाउनलोड से हमारे जो हार्ट रेट पम्प्ड अप थे कि हाँ क्या है क्या नहीं। तो ऑल पेरेंट्स या टीचर्स जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं आपको एक फील का लिंक ये दे सकता हूँ कि जब आप अपने बच्चे की पहली बार आवाज़ सुनते हैं तो उस तरह का जो फील है, जो चीज़ें हैं, उसके लिए जो वेट कर, तो वो टाइप का इमोशन इट इज़ देयर जो आपका सैटेलाइट है, इट्स योर बेबी। तो जब वो सिग्नल हमें अचीव हुआ एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ने उसको डिकोड किया मुंबई की ट्रैफिक में, व्हेन वी वर रिटर्निंग वी वर लाइक डिकोडेड बाय जस्ट लाइक दे वर सो एक्सपर्ट इन दैट कि वो सुनते ही उन्होंने जब ये कहा कि यस this is our signal, so we were all like all you children, we came shouting in the whole Mumbai and this institute about so excitement and so emotional moment for us with हेलो रत्नेश जी, हाँ बोलिए। हेलो रत्नेश जी, आप मुझे सुन पा रहे? यस रवि जी, अभी सॉरी इन बिटवीन जो यस। तो इस तरह से मैं जस्ट आपको एक लास्ट इस तरह से कंक्लूड करूंगा कि आप सारे बच्चे किस तरह से इस देश के स्पेस फील्ड, सैटेलाइट फील्ड में अपना योगदान दे सकते हैं एंड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है स्पेस एजुकेशन की फील्ड में, जिसमें इग्नाइटिंग यंग माइंड काम कर रहा है कि किस तरह से हम बच्चों तक पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज, आप बहुत सारे जो स्पेस के प्रोग्राम्स हैं, इसरो, DRDO, NAL, HAL, उन सब से जुड़ सकते हैं। चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान जो मिशन हैं वो से आप जुड़ सकते हैं। एंड आप क्यों नहीं, जो मैंने बोला कि वाई नॉट का क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हैं बिल्कुल कि मैं खुद क्यों नहीं अपना खुद का इसरो या नासा बना सकता हूँ या लॉन्च कर सकता हूँ या चीजें कर सकता हूँ। आई होप कि वर्कशॉप से कुछ ये बच्चे निकल के आए जो कहें कि नहीं मुझे ये बनाना है, ये बनाना है, एंड खुद का सैटेलाइट बनाना है, खुद के स्पेस फील्ड में रिसर्च करनी। तो यस, इस तरह से आई जस्ट शेयर की सो
इफ डॉक्टर कलाम जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली से रामेश्वरम से उठकर इसका महानायक बने, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, सो इफ यू कैन डू इट बेस्ड ऑन हिज ड्रीम, सो यस, इफ यू कैन ड्रीम you can do it. So yes, इस तरह से I'll just pass on to Ravi ji for this. Okay. Yeah, thank you so much. थैंक यू सो मच रतेश जी। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन का टाइम है, तो बच्चों आप अपना अपना क्वेश्चन मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कि अगर वहां पर कोई मीटिंग में उपलब्ध है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने 2 शब्द रखिए आज के वर्कशॉप के बारे में। हेलो, मेरा रिक्वेस्ट है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कि अगर आप कोई भी स्टाफ अगर वहाँ पर प्रेजेंट है मीटिंग में तो प्लीज आप कोई भी टीचर बता सकता है आपको कैसा लगा, किस तरह का, क्या बच्चों। हाँ, और बच्चे भी, मैं बच्चों को भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ शेयर करना है कि आपको कैसा लगा वर्कशॉप और किस तरह से आप भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हो, तो आप अपने शब्द रख सकते हो। भी हमारे पास टाइम है। एंड आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं खुद का सैटेलाइट बनाने के लिए? माइक ऑन मत करो बच्चों, आप लोग मैसेज बॉक्स में डालो। माइक ऑन करने से गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा लगा आपकी वर्कशॉप अटेंड करके, हमारे बच्चों को इनकरेज किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों को, हमारे स्कूल के लिए LMPIC को आपने जो है उत्साह बढ़ाया बच्चों का, उसके लिए हम आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं कि आपने आज जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है वो हमारे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. It was a great speech by you, and it will really inspire our team to do some miracle in the future also. And I will tell all of you a good news that आज हमारा उत्तर प्रदेश में तीसरा वर्कशॉप है, यानी हमने हैट्रिक आज कर लिया है। आने वाले दिनों में हमारा प्लान है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सब में हमारे वर्कशॉप्स होंगे, उसके बाद हर प्रखंड में हमारे वर्कशॉप होंगे, और इसी तरह से हमारा कारोबार बढ़ता जाएगा। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टेक्निकली स्ट्रांग हो और भारत को आत्मनिर्भर बनाए। यस रत्नेश जी। जी, और कोई कुछ कहना चाह रहे? जी जी बोलिए। कोई बच्चा अपने को कुछ बोलना चाहता है तो आप लोग बोल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो माइक ऑन करके, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर सेशन, तो बच्चों अपने अपने क्वेश्चन पूछ कीजिए। एंड थैंक यू रियली वेरी मच फॉर दिस kind of speech to all of our students of LMPIC. Thank you ma'am, thank you so much. Yes मैम, वहाँ के स्कूल की प्रिंसिपल हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। Thank you ma'am for your time, and it was possible because of the hard work of you and all the entire team of our college. So thank you everyone. So now I request the student please post your questions so that we can answer it. Yeah, मृगनंद जी आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए जी। So I can see few questions. Sir, I want, excuse me sir, I want to say something. Thank you so much sir, हमें इतना अच्छा मौका देने के लिए। लखनऊ मॉडल फैमिली की तरफ से मैं आपका थैंक यू सो मच दिल से करती हूँ। हमारे बच्चों ने आज बहुत अच्छी चीज सीखी, इन्होंने सीखा कि हम किस तरीके से डिफरेंट टाइप कोडिंग सीख सकते हैं, जिससे हम भी चाहें, हमारे बच्चे चाहें वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को। थैंक यू सो मच हमें मौका देने के लिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू। सो बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आए रत्नेश जी, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। जी बोलिए। क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड वी नीड टू प्रोग्राम इन दिस फील्ड, क्या क्या करना चाहिए प्रोग्रामिंग? Yes, 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 Gunjan ma'am, thank you ma'am for joining us. Yes, yes ma'am. Yeah, we are very excited to hear you ma'am once again. Good morning sir. Yes ma'am. Thank you. Sir, I'm very happy to attend this seminar. I'm on the way actually. Very inspiring. Yes, yes. This is very inspiring for me, for our students. You teach us very well. You motivated us. And our Josh is also very high, not only our students, we are also very high stage. Thank you so much. Wow.
तो आने वाले दिनों में लगता है मैम कि एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ मॉडल जो कॉलेज है, इंटर कॉलेज, वहां से एक सैटेलाइट उड़ने वाली है। Definitely, sir. Definitely. हाँ मैम, You हमारा प्लान motivated ऐसा है all कि of us. Thank you so much. हमारा प्लान ऐसा है मैम कि आपका जो लखनऊ जो आपका जो कॉलेज है और स्कूल से वहाँ पर एक सेंटर स्थापित करने का, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स का, जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से आप सैटेलाइट बिल्ड कर सकते हो। तो दैट इज आवर Yes, फ्यूचर sir. प्लान। Very good and very most welcome. Heartily welcome. Thank you so यस much. यस मैम, यस। चलिए रत्नेश जी, मैं Yes, क्वेश्चन sir. आपको बताता हूँ। कुछ बच्चों के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बच्चों के Yes. क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं। तो सर, गोल्डन सीड इज मेड ऑफ विच काइंड ऑफ सब्सटेंस? हाँ, तो उसमें बहुत सारे एल्यूमिनियम के पोरस लेयर्स होते हैं, कई लेयर होते हैं। जैसे हमारे में जो लेयर था वो 10 ऐसे डिफरेंट लेयर का था, कुछ होते हैं 15 डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम एंड के मटेरियल्स होते हैं जी। तो वो बहुत ही फॉइल की तरह होता है। जैसे आप खाना पैक करने के लिए जो फॉइल यूज करते हैं, उस तरह का सैटेलाइट के लिए स्पेस ग्रेड पॉलिथीन। Yes, yes. How can be part of any space program and should we need to progress in this field? बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसा मैंने कहा कि आप बहुत सारे जो इसरो के प्रोग्राम्स हैं, या बहुत सारे जो इंडिया में स्पेस की फील्ड में काम करने वाले स्टार्टअप हैं, काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO, इसरो, डिफेंस में आप जा सकते हैं। जैसे एयरफोर्स की बहुत सारी चीजें सैटेलाइट से लिंक्ड होती हैं। तो इन सब चीजों पे आप अपना पार्ट और योगदान कर सकते हैं। और आपको एक अच्छी चीज ये भी बताऊंगा कि हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि आप सभी बच्चे या सिलेक्टेड बच्चे इसरो की एक विजिट हम करा पाए जब भी कोविड की चीजें नॉर्मल हो जाए उसके बाद। तो यस, तो दीज आर द पार्ट जिसके थ्रू आप उनको लिंक कर सकते हैं और अपना पार्ट कर सकते हैं। हाँ, What type of satellite we make? What type of satellite we make? या बहुत सारे तो इंडिया के पास अभी बहुत सारे डिफेंस की सैटेलाइट्स हैं, वेदर फोरकास्टिंग की सैटेलाइट्स हैं, रिमोट सेंसिंग जो होते हैं जिसके थ्रू आप इमेज प्रोसेसिंग या बहुत सारे एटमॉस्फेयर, या तो आप ग्राउंड की स्टडी कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर की स्टडी कर सकते हैं, या स्पेस की स्टडी कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें, माइनिंग से लेके ब्लैक होल तक हर कुछ चीजें चल रही हैं सैटेलाइट की फील्ड में। तो यस, तो इंडिया के पास इस तरह की How satellite is ejected to from its base? किस तरह से सैटेलाइट को इजेक्ट किया जाता है? ओके, मैंने एक क्वेश्चन ये भी देखा था कि स्काई में भगवान क्यों नहीं दिखते हैं? हाँ, यस 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 यस, राइट राइट राइट, यस यस। ओह माय गॉड, सैटेलाइट है तो भगवान दिखते नहीं है, क्योंकि देखते हैं सैटेलाइट अपना काम कर रहा है ना। यस, वेरी वेरी राइट। तो यस, सैटेलाइट कैसे इजेक्ट होता है बेस से? तो जो रॉकेट है, जो PSLV है, जिसमें आपने देखा कि वो किस तरह से इग्नाइट होता है, और उसके आसपास रॉकेट बूस्टर होते हैं जो एक हाइट तक आपको रॉकेट को ले जाते हैं, और फिर वहां पर रॉकेट और सैटेलाइट के बीच में कुछ तरह की माउंटिंग होती है जिससे वो इजेक्ट होता है। जैसे आप अपना स्प्रिंग, वो जो स्प्रिंग, पेन का स्प्रिंग उछालते हैं ना, उसी तरह से रॉकेट से वो सैटेलाइट इजेक्ट होता है। तो ये प्रथम जो है वो 700 किलोमीटर पर ऑर्बिट कर रहा है। तो वो है जी। Yes. Any other question, children? एंड ऐसा है कि मतलब मैं अपने बच्चों को भी कह सकता हूँ 20 साल बाद कि वो सैटेलाइट अभी ऑर्बिट कर रहा है। Yes. Anyone want to ask any other questions? सर, हम गोल्डन शीट इसलिए What is लगाते the हैं difference कि आप- between shuttle and rocket? जी जी, तो रॉकेट जो है वो आपको एक माध्यम है वहां तक पहुंचाने का। शटल जो है वहां पर ऑर्बिट करता है। जैसे बहुत शटल थोड़े डिफरेंट हाइट्स पे होते हैं जो ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए ऑर्बिट करते हैं, एंड फिर वहां से कुछ चीजें इजेक्ट होती हैं या कुछ चीजें होती हैं। तो वो डिफरेंस, रॉकेट इज जस्ट 15 मिनट या 20 मिनट का वो गेम जिसमें आप जहां भी चाहें। गोल्डन शीट हम इसलिए लगाते हैं कि जो स्पेस में बहुत सारे रेडिएशंस हैं, तो अंदर सैटेलाइट के बहुत सारे कंपोनेंट्स को आपको बचाना है उस रेडिएशन से, तो इसलिए वो एक लेयर, सेफ्टी की एक लेयर है जी। Yes. Okay, Ratnesh ji. So this many question were there from the student side. और बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि तो रत्नेश जी मीटिंग कंक्लूड करें। Yes, one question has come now. How satellite gets chance change its direction? किस तरह सैटेलाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है? तो बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जिसमें जो पैसिव होते हैं और एक्टिव होते हैं। तो एक्टिव सैटेलाइट जो होते हैं जिनमें फ्यूल होता है, फ्यूल, जैसे आप फायर एक्सटिंग्विशर का वो जेट
मारते हैं, उसी तरह सैटेलाइट में वो प्रोपल्जन लगे होते हैं जो फ्यूल से इग्नाइट करते हैं। तो जैसे आपको थोड़ा डायरेक्शन चेंज करना है तो एक साइड का आप इग्नाइट करेंगे तो वो डायरेक्शन अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। यस, ओके रतेश जी, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन कंक्लूड करते हैं। जी आशीष, आपको कुछ कहना है? आशीष, नाउ यू कैन। आशीष, आप कुछ कहना चाहते हो? जुड़ चुके हैं आप हमारे से? हाँ जी रत्नेश जी। जी बिल्कुल आशीष। यस यस, स्पीक। या हेलो बच्चों, मैं आशीष त्यागी, मैं टीम में आईटी हेड कर रहा हूँ और मैंने टीम के लिए कुछ लिखा था तो मैं चाहता हूँ कि वहीं से शुरुआत करूँ। तो आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़े फॉरेस्ट एरिया में हूँ, मैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हूँ, तो थोड़ा ठीक है। अच्छा, टाइगर में वहां से कुछ हिंदी। जी बोलो आशीष। हाँ जी, तो टीम के लिए मैंने लिखा था तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मैं वहीं से शुरुआत करूँ। तो ये है कि आगे जिन्हें बढ़ना है वो सुबह शाम नहीं देखते, लगे ही रहते हैं, आराम नहीं देखते। अरे आगाज कर ही दिया है, थोड़ा सब्र कर लो, निकल पड़े जिनकी वो अंजाम नहीं देखते। वाह। आत्मनिर्भर भारत बनाना है हमारा संकल्प, दूसरों के साथ की राह नहीं देखते। कोई लिखना सिखाता है, कोई दिखना सिखाता है, ये भी सही है, हम गिरेबान नहीं देखते। अभी जो लाइन है वो ध्यान से सुनिएगा। कुछ ने शब्द पिरोया, जैसे हम जैसों ने, कुछ ने संगणक के तारों को, संगणक मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक, तो इसे ध्यान से समझें। कुछ ने शब्द पिरोया, कुछ ने संगणक के तारों को, हमें अंतरिक्ष, धरती से अंतरिक्ष जोड़ना है, हम आसमान नहीं देखते। एक ठोस कदम, सच्चा कदम हम सब ने उठाया है, बदल देंगे सोचने की ताकत, हम परेशान नहीं देखते। ये वक्त है साथ आगे बढ़ने का, संग संग आसमां चढ़ने का, हम हौसले से बढ़ जाएंगे, हम विमान नहीं देखते। तुम डरते हो कि कैसे होगा तो हमसे सीखो, हम साथ रहेंगे। हम भी झोपड़ी से निकले हैं, अब आसमां छूना है, हम अब मकान नहीं देखते। तो यही लिखा था मैंने। क्या बात है आशीष, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार एकदम। तो मतलब मैं तो हर लाइन लिंक कर सकता हूँ और अब शायद यहाँ जुड़े हुए हर कोई वो लिंक कर सकता है किस तरह से वो अचीव हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो वो एक तरह से हमारे टीम का डेफिनेशन भी था उसमें कि हमने कैसे शुरुआत करा और क्या करना है हमें आगे चलकर। सोच की उसमें बात जो आई है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे स्कूल में अभी हम लोग सिलेबस पूरा नहीं कर पाते और हम लोग सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। ये सब पॉसिबल है, मैंने देखा है, मैं ग्राउंड पे रहता हूँ और मतलब हर पंचायत वार्ड वगैरह सारे घूमते रहता हूँ, तो उन सबसे बातें होती हैं। मैंने ये चीज देखा है, स्पेशली बिहार यूपी में मैंने देखा है, यूपी में भी खासकर। तो बच्चे ये सोचते हैं ना कि मतलब अभी जैसे आज हम लोग सैटेलाइट सेशन करा रहे हैं, तो बच्चे ये सोचते हैं कि अरे हमने अभी तो कोडिंग से शुरुआत करा है, पहले पढ़ाई था थोड़ा बहुत, उसके बाद हमें आईटी कंपलसरी हो गया जिसमें हमें कोडिंग सिखाया जाता है, C++ वगैरह। अब ये इतना बड़ा चीज आ गया सैटेलाइट, तो ये सब थोड़ी होने वाला। पर मैं ये कहना चाहूंगा सारे बच्चों से और जो भी गार्जियंस और मेरे टीम मेंबर्स जो भी जुड़े हुए हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मत आंकिए कि आप क्या सोच सकते हैं, ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। सोचने का क्या है, आप अभी सोचो और आप अमेरिका में हो, अभी सोचो आपने सैटेलाइट बना दिया, पर करने का शुरुआत तो करो। ये बहुत मतलब ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि सैटेलाइट स्टडी है तो हम लोग बहुत ऊपर चले गए, वो है ऊपर ओके चीज, पर ये मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते, है ना रत्नेश जी? जी बिल्कुल, बहुत सिंपल तरीकों में सैटेलाइट की चीजें समझ गई। बहुत बढ़िया आशीष। ओके आशीष भाई, इट वाज अ ग्रेट स्पीच बाय यू, इट विल रियली इंस्पायर द स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, तो मैं अभी रतेश जी मीटिंग को अब कंक्लूड करते हैं। या आप कंक्लूड करिए। बिल्कुल।
यस सभी रवि बच्चों जी से मैं अनुरोध है कुछ कि कहना चाहूंगी। यस मैम प्लीज। रवि जी मैं गुंजन खत्री। यस मैम मैं सुन पा रहा हूँ आपको। थैंक यू Yes, सो ma'am. मच रवि जी, रत्नेश जी, आशीष जी, ऑल द टीम मेंबर्स। और रियली में आज जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हैं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि यू पीपल आर टू अपॉर्चुनिस्ट इन दिस कोविड काल। क्योंकि आज जो आप बैठ के यहाँ बैठ के जो इनिशिएटिव हमारा IVM ले रहा है, वो शायद आपको पॉसिबल नहीं था इससे पहले। लेकिन जो आज ऑनलाइन के ट्रेंड्स चालू होने की वजह से हम ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड है। और डेफिनेटली वी आर टू अपॉर्चुनिस्ट की जो हम ग्रेट पर्सनालिटीज से ऑनलाइन उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी संभव नहीं था। तो आज आपने जितने भी टीचर्स हमारे जुड़े हैं या जो प्रिंसिपल जुड़े हैं, हमारे बच्चे जुड़े हैं, ये आप फॉर्चुनिस्ट हैं कि आज रत्नेश जी को आपने जाना, क्योंकि वो फैक्ट है कि हमारे हिडन स्टार्स हैं। आज आपके सामने फैक्ट सामने आए हैं और बहुत कुछ अच्छा उन्होंने बताया है हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी आशीष जी ने बोला कि आत्मनिर्भर भारत की बात जैसे हम करते हैं, तो डेफिनेटली, लेकिन अब डिपेंड आप पे करता है। आसमां बहुत बड़ा है, अगर तारे छूने की आप में चाह है तो जरूर पहुंचेंगे आप वहां तक। तो मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जरूर जुड़िए और इसमें आगे से आगे बढ़कर इन चीजों को सीखिए। IVM टीम, पूरी इंटायर टीम बहुत मेहनत कर रही है, दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो आपके लिए ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो जरूर जुड़िए। और थैंक यू सो मच रत्नेश जी, जितने भी मेरे आज डिग्निटी टीम मेंबर्स जुड़े, और डेफिनेटली ऐसे पॉसिबल नहीं था। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच रवि सर, थैंक्स अ लॉट। Yes, ma'am. It was like a supersonic missile. You said something. इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जैसा आपका बहुत इंस्पायरिंग था मैम। काफी अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। और रत्नेश जी हम कंक्लूड करते हैं अब। ओके। यस सो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप मीटिंग लेफ्ट करो तो सबसे पहले बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को और भारत माता की जय बोलो, और फिर मीटिंग लेफ्ट करो। सभी बच्चों से भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जोश बना रहना चाहिए बच्चों। भारत माता की जय। 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 जोश बना रहना चाहिए बच्चों, लास्ट तक। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यस। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। कम ऑन। यस, सभी लोग आप मीटिंग लेफ्ट हो जाएं। भारत माता की जय बोलते हुए सभी बच्चे मीटिंग लेफ्ट हो जाएं। अभी सेशन खत्म हो चुका है। भारत माता की जय। यस।